Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So we are starting with the analysis video for 1st of November 2023. So when we talk about cyber attacks, so definitely the risk is increasing because we are seeing the way technological spread is happening. It is becoming a very important component of our everyday lives. Everyone is using smartphones. Everyone is on social media platforms. So that's how basically it has become an important part when we talk about even the spread of e-commerce websites. So herein it is specifically regarding the Apple cyber attack alert. So we see several politicians, journalists, they say they've received alerts from the tech giant, that is Apple, their devices, they were being targeted by state-sponsored attackers. So we need to look into kitna such hai. Government promises कि obviously इसमें उसको prop किया जाएगा, calls snooping claims as vague. So basically like let's see कि वही कि मतलब ये कितना सच है कितना झूठ है and that's there. But yes, definitely जब हम cyber attack risk की बात करते हैं तो definitely risk remains very high. So for that, as far as when we talk about the institutional level, what are the institutions are functioning to curb or to reduce, mitigate this the attacks regarding the cyber attacks. So we have certain, that is the computer emergency response team of India is there. We have the IT Act, and we are also seeing ki cyber attacks and their linkage, or when we talk about the ransom, so that is also being demanded in cryptocurrencies. So these are the things which are related to this particular topic. So Ashik, do you want to raise any question or any new point regarding cyber attacks? First of all, we have already seen last 2 years about the Pegasus, that is a Israeli spyware, which have been used by the state-sponsored intelligence agency to track that activist. तो उसी के अराउंड ही एक तरह से ये है, लेकिन क्या ऐसा बोल सकते हैं इसमें कि एप्पल साइबर अटैक जो है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्पल कंपनी रादर देन द गवर्नमेंट? क्योंकि ऐसे तो बाकी जब में तो नहीं आता, एंड्रॉयड में हो गया या बाकी सब में, और हमें डेटा प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। बाकी बाकी कंपनीज में नहीं आता है, मतलब क्या आप यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हो? मतलब स्पेसिफिक टू द एप्पल ही क्यों है ये मुझे था यहाँ मतलब। पे हाँ, जो ऑपोजिशन पार्टी है, मतलब पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनको बेसिकली अलर्ट्स रिसीव हुए हैं सेइंग कि योर डिवाइसेस, जो बेसिकली एप्पल डिवाइसेस हैं, वो टारगेट किए जा रहे हैं बाय द स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स. सो डेफिनेटली एक क्लेम है ये. मैंने यही स्टार्टिंग में क्वेश्चन रेज किया कि वी नीड टू नाउ लुक इनटू ऑब्जेक्टिविटी एंड ये कितना सच है. दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग जो देखना पड़ेगा. And definitely like periodically we get the notifications of updates also. So एक वो स्टेप है जो लिया जाता है ऑन पार्ट ऑफ एप्पल, बट अगेन वी नीड टू लुक इनटू कि क्या वो साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए इनफ है. पार्थ, योर वीडियो इज ऑन. We can move to the next article. Okay. So when we talk about again the issue regarding the office of governor, functioning of the office of governor, that is, we are seeing most of the states, like in Tamil Nadu, here we have the example. In Karnataka, we saw that. Even in Maharashtra, we saw, and even in Punjab, this was the issue. So we are seeing such types of issues are spreading across different states. It is being basically governor versus the chief minister of the state. So देखा ये जा रहा है कि कुछ ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर्स जो गवर्नर्स अज्यूम कर रहे हैं कि वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, बट ऑल्दो इट इज नॉट. सो यहाँ पे फर्स्टली वी सी एक जो इशू आ रहा है कि जो गवर्नर है वो बिल को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए पेंडिंग रख रहे हैं, उनको क्लियर नहीं कर रहे, जो फाइनल असेंट होनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं. सो Tamil Nadu government has moved a writ petition on this in the Supreme Court against the governor for creating constitutional deadlock. So this is there. So यही है. एग्जाम्पल दे सकते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नेंस पावर एंड जो सेंटर स्टेट जो रिलेशनशिप होता है उसमें.
और इसमें मेरे को एक चीज बोलनी है कि जो भी मैटर्स होते हैं इसमें आर्टिकल 201 और आर्टिकल 163 में थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहिए, बिकॉज डिस्क्रिशनरी पावर्स आर अंडर आर्टिकल 163, not under article 201, under which the discretionary actions are taken by the governor in the time of passing of the bill of the state legislature. So it is the World Cities Day. तो again जब हम बात करते हैं metropolitan cities, smart cities, we talk about smart villages also. So कैसी लगनी चाहिए? So in this picture, if we go by World Cities Day, and this is a picture from Mumbai, you are seeing traffic. जहां तक आप देख सकते हो कि रोड एंड हो रही है वहां तक आपको जस्ट ट्रैफिक दिख रहा है. प्लस हाउसेस की अगर आप बात करोगे तो अगेन we are seeing less of green space and more of high-rise buildings, and that too again when we talk about कि periodically we need to again जो renovations होती है उसके around भी, that is also important. As far as again fire safety, that is very important. Are these buildings resilient? क्या वो sustain कर सकती है? जो earthquakes अब हमने देखने को मिल रहा है कि frequency is also increasing, their magnitude is also increasing. So उसमें आप और जो पॉइंट्स है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं. तो challenges of urbanization globally क्या है? एक तो it is around waste disposal. Second, definitely जो traffic management है, with that we are seeing greenhouse gases emissions that is going up. उसकी वजह से air quality is getting impacted. Few days ago we were talking about कि कैसे air pollution is even becoming a major concern, even the Mumbai as well. So वहाँ पे भी हमने reasons discuss किए थे. तो major reasons यही निकल के आए हैं. Apart from this, when we talk about real estate sector, तो ये भी कहीं ना कहीं challenge हो जाएगा with urbanization कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स है दे आर स्टॉल, जो फंड्स हैं वो मिसयूज किए जाते हैं बाय द प्रमोटर्स. सो दीज विल बी सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन व्हिच आर प्रेजेंट. So I would like to add one point in Mansi, your greenery particular note, कि we can use Miyawaki method, especially for the plantations in these high-rise buildings. In balconies, every house can do so, and the vertical plantation can also be done. So these are two minute steps. रूफटॉप गार्डन्स बनाए जा सकते हैं. ठीक है. मियावाकी मेथड अगेन as far as my clarity is concerned about this idea is आपको लैंड पे करना होता है. सो लैंड के लिए बेसिकली उसमें जो एडवांटेज है थ्रू दिस मेथड इज कि इट टेक्स लेस टाइम टू एस्टैब्लिश अर्बन फॉरेस्ट. So that is one of the advantages. So urban forestry के around और ज्यादा density create करने के लिए we can definitely go by this method. So औशिक, आपको कोई point raise करना है? नहीं मानसी, you can move forward. Okay. So Akhora Agartala rail link hai, it is between India and Bangladesh. So this is again one of the steps when we talk about how we are easing the connectivity and transportation, specifically Northeast India ke perspective se bhi, and again international level pe bhi between India and Bangladesh. So this can be again one thing, and we can look at the exact location kahan se it is starting. So Akhora Agartala name of the locations hi hai. And so it is seen as a first step to connect Tripura state to Kolkata through Bangladesh. So it will be basically important. It will be passing via Bangladesh. So Tripura or Kolkata would also get connected. So Northeast India specifically, we are focusing upon connectivity projects. So basically, Mansi, we can add that in neighborhood development project, we can use cross-border rail link project to increase the people-to-people contact and trade between the two countries. तो भूटान से भी कर सकते हैं, नेपाल भी कर सकते हैं, या फिर म्यांमार हो गया, या फिर बांग्लादेश हो गया. और यहाँ पे So Pravesh, you can add this point, how it is going. cross-border rail link project. It will be helping Northeast India. Firstly, Assam की tea industry की बात करें तो it would be again connecting with the Chittagong port of Bangladesh. Then India Bangladesh trade कौन सी specific commodities में promote हो सकता है with this
rail link would be in agricultural products like again tea, sugar, construction items भी रहेंगी, iron and steel, and consumer items besides people to people ties. So few of the achievements of the state of Haryana हम बात करते तो highest annual income limit for the BPL families, maximum monthly social security pension provide की जाती है, highest per capita income amongst the major states हरियाणा की है. Then again sports industry बहुत important एक हम बोल सकते हैं contribution है, highest per capita dairy milk availability हरियाणा में हमें मिलती है. So ये कुछ major areas हैं of achievements and जहाँ पे again हरियाणा state और contribute कर सकता है, which can again help in more cooperative federalism for other states also. So ownership rights within the lal door of the villages. 50% पार्टिसिपेशन वुमेन का देखने को मिल रहा है पंचायत में. व्हेन वी से कि हरियाणा में इट यूज्ड टू हैव वन ऑफ द लोएस्ट सेक्स रेशियो, वहां पे 50% ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन पंचायत. सो हाउ दैट्स सीइंग कि इट इज इवन फाइटिंग विद दैट चैलेंज एज वेल. स्टेट भी बना है मानसी. क्या प्रवेश, क्या हाईलाइट कर रहे हो? द फर्स्ट केरोसिन फ्री स्टेट इन द कंट्री. हाँ, फर्स्ट केरोसिन फ्री स्टेट इन द कंट्री. ठीक है, कुछ ये फैक्चुअल पॉइंट्स है जो अगेन हमें कहीं पे हेल्प जरूर करेंगे. जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, इट कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर अदर स्टेट्स आल्सो. ई टिकटिंग जो तो मेथड है, हमेशा लाइक हरियाणा स्टेट के जब भी कंट्रीज हम बात फर्स्ट करें, तो आयुष सबसे यूनिवर्सिटी एंड पहले स्किल यूनिवर्सिटी. तो स्किल यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले सकते हैं. स्किल यूनिवर्सिटी हो गया, बट मैं जनरली बोल रही हूँ कि हरियाणा स्टेट की जब भी आप बात करते हो तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हरियाणा हमेशा आगे रहता है इन ई गवर्नेंस. तो ई गवर्नेंस वाले जो इनिशिएटिव्स रहते हैं, आप देखोगे कि सबसे ज्यादा हरियाणा में हर छोटे से छोटे एस्पेक्ट में हरियाणा टेक्स द लीड इन दैट. एंड 400 फॉर्चून कंपनीज इसके ऑफिस भी हरियाणा में लोकेटेड है. सो दिस इज वेरी गुड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग. ये ले सकते हैं मानसी. ये सोशल मीडिया Anil Antony booked for his post on social media. Union Minister booked for remarks on blast. Kerala police have lost FIR against Rajiv Chandrasekhar after he allegedly placed the blame on a particular committee for the multiple blasts at the convention center. तो आई थिंक इसमें बता सकते हैं हम लोग कि कैसे जो डिस इंफॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन है उसको प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू. एंड बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, स्टेट मिनिस्टर है, तो he should have been very responsible in putting out his own views on the social media and also the factual जो information है उनको भी एक सही तरीके से ऑनलाइन डालना चाहिए. नहीं तो फिर लॉ जो होता है वो इक्वल होता है हर के लिए. तो आई थिंक बाकी स्टेट भी यूज कर सकता है जैसे केरला ने यूज किया अगेंस्ट अदर पॉलिटिकल पार्टी जो भी फेक न्यूज फैलाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी चीज. So this is a reasonable restriction on the fundamental of expression and speech, which we were discussing yesterday. Pravesh? Yes, okay. तो यहाँ पे भी अगेन ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें, ट्रांसपेरेंसी एट द गवर्नेंस लेवल, सो वी टॉक अबाउट ई गवर्नेंस. वो एक मेथड है ऑफ प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी. सो यहाँ पे अगेन आरटीआई इज अनदर मैकेनिज्म थ्रू व्हिच ट्रांसपेरेंसी इज प्रमोटेड. बट जो रोजगार बाजार या मेलाज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का रिप्लाई ये था आरटीआई पी के अगेंस्ट कि कोई डेटा नहीं है ऑन एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार बजाज जॉब्स पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है. तो फिर अल्टीमेट जो मोटिव है, आई थिंक कि अगेन ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं हो रहा है. प्लस
आपके पास अगर कोई डेटा नहीं है तो उसकी अगेन एफिशिएंसी एंड रेलेवेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस उठते हैं. So Delhi government gave 10 lakh jobs. Employment Directorate says कि does not have the data on jobs provided through official portal. तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन पोर्टल है और ऑनलाइन पोर्टल पे ही डेटा नहीं है? तो this is quite Well, like Ansi, I would like to comment here that the government should avoid such kind of statements because it leads to a lot of problem as far as the government's accountability is concerned. Because if you are saying that the official portal is not able to record the data, but the time you are giving the free commutation services to the people of Delhi in the DTC buses, even to the women you are giving in color tickets to take the data that how many women are traveling in the buses. So saying that we are not having data, this shows that lack of sensitivity towards the employment opportunities. so ये तो हम बात कर चुके हैं अराउंड एथिक्स एंड एमपीज जो डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं. एक और एक साइड में, लेफ्ट साइड में, matters of defection should be taken out of purview of the speaker. हाँ, एज अ रिफॉर्म क्या ये किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे भी हमने कल देखा था सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है असेंबली स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र की आपको जो 3 महीने की टाइमलाइन दी है, 2 महीने की टाइमलाइन दी गई, उसके अंदर आपको डिस्क्वालिफिकेशन केसेस डिसाइड करने हैं. सो एक ये, हाँ, ये यहाँ पे एज अ ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया जा रहा है कि क्या जो मैटर्स ऑफ डिफेक्शन है और जो पावर्स रेस्ट विद स्टेट असेंबली स्पीकर के पास रहती हैं, क्या वो मतलब उनसे विड्रॉ करके या मोर सूटेबल और कोई अथॉरिटी हो सकती है टू डिसाइड ऑन दीज केसेस, या क्या डायरेक्टली अगेन कोर्ट ही इन केसेस को डिसाइड कर सकते हैं? तो इसमें मेरा स्टैंड हो सकता है कि मैटर ऑफ डिफेक्शन is part of the legislative process, and speaker being a presiding officer in the legislative assembly, he or she has the right to give direction in the matter of defection. और इसमें अगर जुडिशरी का अगर ज्यादा इंटरवेंशन रहेगा तो इट विल वायलेट द सेपरेशन ऑफ पावर्स which has been given in the Constitution of India. तो ये एक मैटर हो गया, और फिर बाकी यहाँ पे प्रवेश को ऐड कर देते हैं। वॉयलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे हो जाएगा? क्योंकि क्योंकि जो स्पीकर के पास पावर्स हाँ, रहती है क्वाज़ी उसको लिमिट किया जा सकता जुडिशियल है, लेकिन आउट ऑफ लिखा हुआ ना, एक आउट ऑफ कंसर्न. परव्यू ऑफ स्पीकर। हाँ, आउट ऑफ परव्यू ऑफ स्पीकर से अगर वो जुडिशरी के पास डायरेक्टली जाएंगे ये केसेस, तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वॉयलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे होगा, क्योंकि ये जो स्पीकर के पास पावर रहती है दीज आर आल्सो क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स हम बोलते हैं. जो स्पीकर रहता है अगेन इज अ ही और शी इज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक बायस और डिस्क्रिशन का एक चांस रहता है इन दीज बात यहाँ नहीं है मानसी, डिस्क्रिशन मैटर्स. तो डिस्कशन में चाहे ऑब्जेक्टिव बात ये नहीं है, स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द लेजिस्लेटिव Within the असेंबली। premises of the house. हाँ, तो बहुत हाईएस्ट पोस्ट होता है, हाँ. तो उसका अगर देखा जाए तो एक सैंक्टिटी है, गरिमा है। तो आई थिंक उनका पावर्स को ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि द मैटर शुड बी रिजॉल्व विद इन द 3 month। तो दिस कैन बी डन by limiting the powers of the speaker, but the taking defection matter out of purview of the speaker may constitute the violation of the separation of power। क्योंकि स्पीकर का पावर फिर क्या रहेगा अगर आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हाउस के अंदर में, और हर जगह जुडिशरी अपना जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं कर सकते जाके। ओशिक भाई, मुझे आपके पॉइंट के ऊपर ही थोड़ा कुछ ऐड करना है कि हमारे यहाँ जैसे आई आल्सो टॉट yesterday that 3 types of parliamentary disqualifications have been laid down in the constitution. First, the president deals. Second, under the RPS, and third, under the authority of the speaker, that is the anti-defection law in the 10th schedule. तो हम ये नहीं कह सकते कि जो स्पीकर है उससे लेनी चाहिए, बिकॉज प्रेसिडेंट के पास भी डिस्क्वालिफिकेशन की पावर तो है। दूसरा ये कि टाइम लिमिट आप सेट करी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको एडरेंस उसकी पूरी होनी चाहिए। और जो स्पीकर होता है, जैसा कि कौशिक जी ने कहा कि बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट होती है विद इन द प्रेमाइसेस। जो स्पीकर होता है उसकी बायसनेस के ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंस है। जब हम बिजनेस रूल्स कमेटी और अलग अलग तरीके की जो पार्लियामेंट्री हमारे यहाँ कन्वेंशन है, स्पीकर भी पूरा बायसनेस नहीं दिखा सकते हैं। तभी हमारे यहाँ जो स्पीकर हैं उनको बहुत डिग्निफाइड पोजीशन दी गई है। और स्पीकर का
अगर आप ये कहें कि डिफेक्शन मैटर्स इनकी परव्यू से बाहर लेने चाहिए, तो ऐसा करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर स्पीकर की पावर बाइंडिंग होती तब ये प्रॉब्लम होती। अभी स्पीकर की पावर बाइंडिंग नहीं है इन द मैटर्स ऑफ डिफेक्शन, सो द इंडिविजुअल लेजिस्लेचर on which the case of defection have been put out, he or she can represent his case against the speaker decision in the court, in the high court as well as in the Supreme Court later on. So अच्छा, I यहाँ think पे the time limit is पावर only टू solution. जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट करती है प्रवेश, है ना? Yes, yes, yes. ठीक है, ओके। हाँ हाँ, तो हम ये स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है, आई गॉट इट नाउ, कि टाइम मतलब लिमिट जुडिशियल रिव्यू तो रहेगा ही मानसी, हाँ, लेकिन आउट ऑफ परव्यू नहीं कर सकते वो बात। आउट ऑफ परव्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगेन जो सैंक्टिटी वाला पॉइंट आपने रेज किया और टाइम लिमिट इम्पोज हो जाएगी, तो जो मेन प्रॉब्लम है कि ये केसेस पेंडिंग रहते हैं वो सॉल्व हो जाएगी। एंड अगेन कोई अगर इशू रहता है आफ्टर द फाइनल डिसीजन ऑफ द स्पीकर, तो देयर इज द अगेन जुडिशरी के पास पावर है और जुडिशियल रिव्यू। एक और मैं ऐड करूंगा शॉर्ट पॉइंट मानसी, कि वी कैन ले डाउन द प्रोसीजर फॉर डिफेक्शन। क्या प्रोसीजर होना चाहिए? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, वैसे ही कुछ प्रोसीजर होना चाहिए, तो उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो जाए। we have we have the procedure हम्म। under articles के under schedule 10 we have procedure already. नहीं, वो तो कंडीशन दिया हुआ है ना कि प्रोसीजर की सुप्रीम कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप, जैसे बजटरी प्रोसीजर है वैसे टाइप प्रोसीजर का बात कर रहा ओके, हूँ। तो मतलब आप फॉर्मल रूल्स बता रहे हो कि किस तरीके से क्या हाँ, स्टेप्स लगेंगे। ठीक कंडीशन नहीं बात करो, डिफेक्शन या फिर डिस्क्वालिफिकेशन क्या कंडीशन है, ठीक। प्रोसीजर का स्टेप बाय स्टेप, तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकता है। So as we see कि railway accidents are happening, तो what should be done? We can upgrade the signaling and telecommunications network. So भी recent आंध्र प्रदेश में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसमें ये एज एन अजम्पशन इनिशियली माना जा रहा है कि जो सिग्नल था उसको बेसिकली ब्रेक करके द ट्रेन वेंट अहेड। तो मतलब ऐसी लोकेशंस पे फिर सिग्नल डिप्लॉय होने चाहिए कि वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए टू द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन। मानसी, यू कैन रीड एंड लेटर ऑन Yeah, you guys समराइज। can आई विल discuss. आस्क प्रवेश कि मानसी, मैं प्रवेश, दो चीजें यहाँ पे बोलता हूँ कि जो मोटी मोटी है, एक तो मैकेनाइजेशन ऑफ ट्रैक लेइंग एक्टिविटी होनी चाहिए। इसमें मशीन जो है वो ट्रैक करे जो रेलवे ट्रैक है, और जो होता भी है उसको थोड़ा फ्रिक्वेंसी उसकी ज्यादा कर दे। दूसरा ये कि सेंट्रल ऑपरेशनलाइज जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, और ह्यूमन फेलियर्स ना हो इसके लिए प्रॉपर मतलब रोबोटिक्स का और एआई का यूज हमें विद इन द लोकोमोटिव करना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और, प्रवेश, इंडियन रेलवेज में हाँ क्या डीपर और क्रॉनिक इश्यूज क्या है? इंडियन रेलवेज में क्रॉनिक इश्यूज पे हम बात कर सकते हैं। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो क्रॉनिक इश्यूज है वो है ऑपरेशनल सेफ्टी के अंदर में पोस्ट का वैकेंसी वो ज़्यादा है, और जो मैकेनाइजेशन ऑफ ट्रैक है या फिर ट्रैक सेफ्टी हो गया, ट्रैक लेइंग हो गया, वो कम है। वी यूज से स्टिल यूज लेबर फोर्स rather than mechanized robotic for laying down track, और इवन इन द जो गेट होता है, ट्रैफिक गेट होता है, उसको भी हम लोग मैकेनाइज यूज नहीं करते कुछ कुछ जगह एरिया पे, तो वहाँ करना चाहिए। और आपको आई ऐड थिंक करना, आप ऐड कर दो। तो मतलब मेजर chronic issues, I think Mansi is asking what are the major problems in the Indian Railways. तो क्रॉनिक हमने बात किया था ना कि ऑपरेटिंग रेशियो Basically बहुत ज्यादा है, बात तो करके इसलिए आप जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो रेलवेज में बहुत कम हो जाता है, इसके कारण प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये क्रॉनिक हो सकता है। ठीक। हाँ। ओके, सो दूसरा सैनिटेशन का एक इशू है, तीसरा फायर का, और फिर डीरेलिंग का भी है। तो ये कुछ chronic issues I will like to highlight. हम्म। ओके, सो यहाँ पे दो आर्टिकल बात कर रहे हैं। एक तो सिग्नलिंग इंटरफेरेंस या सिग्नल जंप की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। कवच सिस्टम की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि अभी जो हमारी इंडिजिनस एक टेक्नोलॉजी है कवच सिस्टम, विच वाज डेवलप्ड फॉर एज अ ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, वो सारी ट्रेन्स में अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें मैसिवली हेल्प कर सकते हैं इन रिड्यूसिंग सच टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। तो डीपली मतलब क्विकली ये सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए सारी रेलवेज जो भी इंडिया में फंक्शन कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रवेश ने आपने हाईलाइट कर दिया कि मैकेनाइजेशन ऑफ ट्रैक लेइंग एक्टिविटी होना चाहिए बाय ट्रैक मशीन्स टू रिड्यूस द ह्यूमन एरर्स। तो इसमें बेसिकली मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी हमें और हेल्प कर सकती है।
and इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होना चाहिए जो एक सेंट्रलाइज्ड सेंट्रली ऑपरेट किया जाएगा फॉर पॉइंट्स एंड सिग्नल्स जो रहेंगे स्टेशंस सो दैट दे कैन एलिमिनेट एक्सीडेंट्स ड्यू टू ह्यूमन फेलियर एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ द राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष फॉर द रिप्लेसमेंट renewal and upgradation of critical safety assets to improve the functioning. So again ये periodic exercise भी की जानी चाहिए. What is the condition of the tracks? And again finance के around उनको replace करना है, renew करना है, upgrade करना है, तो उसके लिए availability of finance that is there जो हमारा राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष है. Apart from this, installing technology on every train वो हमें help कर सकते हैं in capturing every minute communication. So government should see कि जो even members हैं railway board के they are drawn from pool of professional or experts or technocrats हमें recruit करने important है. तो even यहाँ पे भी importance of skills आ जाता है. So these are some of the important points around this. सो लोकल गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं अगेन इफेक्टिवनेस ऑफ लोकल गवर्नेंस या जो पीआरआई म्युनिसिपल बॉडीज इंस्टीट्यूशंस है सिस्टम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है. व्हाट आर द इश्यूज? तो यहाँ पे दो इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं. एक तो स्टाफ शॉर्टेज है एंड देन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी. जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डेवल्यूशन द फंड्स तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन जो फंड्स रिकमेंड करते हैं वो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को. जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है देन इट बेसिकली जो फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा किए जाते हैं टू दी लोकल गवर्नमेंट्स. सो वहां पे थोड़ा सा वी सी देयर इज अ गैप. So that's there and जो again revenue generating capacity of the local body institutions वो बहुत less है. So most Indian cities they lack transparency. They're not publishing accessible civic and financial data as well. So again ये step local level पे किया जाएगा लिया जाएगा तो और थोड़ी हम you can say कि efficiency in governance और improve कर सकते हैं as we talk about good governance. So limited powers भी exist करती है जो again जो subjects mentioned हैं in the 11th and the 12th schedule. So वो power भी जब हम पंचायती राज institutions urban local bodies की जब हम बात करते हैं तो वो power भी state legislative assemblies के पास rest करती है कि state legislative assemblies decide करेंगे कौन से subject पे power devolution किया जाना चाहिए to the local level governments. So this is basically एक survey है A6 2023 annual survey of Indian city systems. So आप लोग highlight कर सकते हो अगर आपको कोई और important point raise करना है around this topic. So Mansi, in the right hand side we can have a look. Some factual information it is mentioned that UN emergency force it is being raised to supervise the Arab-Israeli ceasefire, and so this is a particular new agency, and प्रवेश 1973 है वो. This is 50 years ago वाला जो रहता है data. और योम किम्पिन वॉर हुआ था वहां पर उस समय इसलिए. Wants India to join UN force for West Asia. ये हम आई थिंक कल ले चुके हैं. दिस इज अ रिपीट. कार्गो ट्रांसपोर्ट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं रेलवेज में. So this is a repeated topic. ये भी repeated है. मालदीव्स प्रेसिडेंट इलेक्ट उनका क्या स्टांस है ऑन इंडिया. So even during the elections जब हो रहे थे we इंडिया इसका इंटरेस्ट देख सकते हैं सिर्फ. इंडिया के इंटरेस्ट पास्ट 4 years India has emerged as Maldives main security or economic partner. तो definitely Maldives obviously cannot ignore India. Yeah, it cannot be clearly or so massively pro China. So India has committed around $1.4 billion towards the socio-economic development needs of the Maldives. So here we're talking about कि again India कैसे engaged है with Maldives. Indian establishment sees जो हमारी खुद की security interest है again because Indian Ocean region की हम बात कर रहे हैं and location of Maldives it is an Indian Ocean island nation. So from the perspective of maritime security also
it is important from the perspective of India, and definitely we are seeing growing assertiveness of China. China is trying to increase its presence in the region. श्रीलंका की हम बात करें, कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट है या सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव्स हैं, उसका मेंबर है मालदीव. इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट एंड श्रीलंका इज ऑल्सो मेंबर. सो ये एक ट्राइलेटरल इनिशिएटिव है विद इंडिया एंड श्रीलंका, एंड इसमें लेटर मॉरिशस ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस. सो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. So this is for maritime cooperation in this region. Apart from this, Sagar initiative है India का security and growth for all in this on the region, and Bharatmala project है. Then हमारी again national security is the primary interest. And again, from the perspective of rules-based international order, promotion of trade, because ये जो trade communication routes हैं, वो definitely concentrated हैं ज़्यादा, or we can say कि they pass by the Indian Ocean. So that's why security becomes important. So Supreme Court flags the possibility कि electoral bonds जो हैं, they might be being used for trade favors to basically for favoring political parties. तो ये एक possibility हो सकती है जो अभी Supreme Court ने raise किया है इस concern को. And जो again final verdict रहेगा, definitely will be discussing that as well. So here we see कि electoral bonds जो रहती है, it maintains that principle of anonymity of the person who's donating the amount to a political party. So suppose there's a person A जिन्होंने purchase करी एक electoral bond worth ₹100 crores. So A is only put up by B for the purchase as he has a verified. तो KYC आपको verification करनी पड़ती है. So that's important, and it is B who actually gives the donation to the political party. So B can also be एक aggregator भी हो सकता है of electoral bonds by having 100 people buy these bonds worth ₹1 crore each. And this was basically एक example के through इसको इस concern को highlight किया गया. So challenges of electoral bond scheme क्या है? This is the main topic which is under discussion. मानसी, अभी ना इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट आएगा, तो वी कैन टेक अप इन अ डिटेल फॉर्म. हाँ, but एक ये concern है बोल सकते हैं. So एक over 90% of the उसमें डिटेल में ले लेंगे फिर the ruling अच्छे से. parties, हाँ, making it apparent कि they are meant to favors done और जो anticipate किए जा सकते हैं. So एक ये data हम ले सकते हैं यहाँ से कि जो 90% of donations है वो ruling party को जाती है. So for having a unified information on doctors, the National Medical Commission एक पोर्टल लॉन्च करेंगे, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म. तो चाहे आप स्टूडेंट आईडीज की बात करो, जो हमने पहले अपार आईडीज की बात करी, या नेशनल हेल्थ आईडीज जो बनाई जा रही है उसकी बात करें, यहाँ पे डॉक्टर्स की आईडीज की बात करिए, तो नीड क्या है? व्हाट इज द नीड फॉर क्रिएटिंग अ यूनिफाइड इंफॉर्मेशन ऑन डॉक्टर्स? So I think the need would be to increase the transparency between the doctors and the patient. तो patient can know more about the doctor and its their own degree and their experience in their field. ये पहला हो सकता है. Second would be early diagnosis of the patient will be done via doctors. तो उसे के लिए important है efficiency और effectivity के और लिए. एक और इम्पोर्टेंट कंसर्न एड्रेस हो पाएगा थ्रू दिस वुड बी जो क्वैक fraudulent measures. जो हाँ fraudulent measures है fraud doctors का जो आता है, झोला वो छाप उससे क्या होगा कि हाँ ऑनलाइन रहेगा तो नहीं होगा उससे. प्रवेश को ऐड करना है कुछ? नहीं नहीं जी नहीं. So Navy chief calls for a plan among the GMC countries. So herein we see गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव है. hmm, 13 countries were part of it. structure light
and functional heavy, as there was a need to have an operational framework that is free, flexible, nimble, responsive, and reliable. So these are the keywords. So Indian Navy's Information Fusion Center for the Indian Ocean region this is important from the perspective of maritime security, such as maritime law, maritime search and rescue, humanitarian assistance, and disaster relief. So from the perspective of repository of information and knowledge and best management practices that are exclusively relevant to the waters. So GMC जो है, it is an important platform to interact with the Indian Ocean littoral states. ये ले सकते हैं प्रीलिम्स टाइप में. Which one? MiG-21 फेज आउट हो सकता है, और जो लाइट LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इसका नाम प्रचंड है. इट इज मेड बाय आई थिंक HCL नहीं, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड. प्रवेश, एक प्रीलिम्स क्वेश्चन है कि मिग जो होता है, मिग और सुखोई, ये कहाँ से लिया गया है बेसिकली? इंडिया ने प्रोक्योर कहाँ से किया? ऐसे मिग सुनता है ना, MiG-21 हो गया, MiG-29 हो गया, या सुखोई 30 हो गया. तो रशिया इज द आंसर. औशिक, प्रवेश से पूछना था. मानसी सिक्योरिटी वाला है ना. रशिया है प्रवेश. और फ्रांस का जो पूछा गया था ना एक बार, डेसॉल्ट कहाँ का है, तो फ्रांस है. ऐसे उसका एग्जाम्पल बता दिए अगर प्रवेश बोलना. फ्रांस से जो लिया गया है, कोई भी. राफेल. हाँ, राफेल एक है, और दूसरा मिराज है, मिराज 2000. 2 हो गया. अभी तक US से नहीं लिया गया फाइटर जेट एक भी. हाँ, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है. एक भी नहीं लिया अभी तक. हम्म. सो सितंबर में जो कोर सेक्टर ग्रोथ है, इट स्लिप्स टू 8.1%. सो कोर सेक्टर अगेन हम असेस करते रहते हैं हाउ अगेन ग्रोथ इज चेंजिंग, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि कोर सेक्टर है वो. कोर सेक्टर क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि जो 8 कोर सेक्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल दोनों स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वहीं से बेसिकली हम बोल सकते हैं कि फाउंडेशनल ग्रोथ सेक्टर्स हमारे जो कोर 8 सेक्टर्स हैं दैट कंप्राइजेस, और 8 कोर सेक्टर्स हमें बाय नेम भी पता होना चाहिए कौन से 8 कोर सेक्टर्स हैं. सो वी सी कोल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स देयर. एंड अगर हम बात करें और बाकी सेक्टर्स, फर्टिलाइजर इज वन. देन ग्रोथ इन जो कोर सेक्टर जो हो गया, ये तो वही सेक्टर है ना IIP वाला जो हम बात करते हैं. प्रोडक्शन वाले सीमेंट, कोल, आयरन नहीं होते हैं. डिफरेंट होते हैं. नेचुरल गैस इज वन. देन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वही फैक्ट, तो IIP वाला है कोल सेक्टर, बेसिकली कोर सेक्टर है. बात हो रही है ना 40%. इंडेक्स. हाँ, कोर सेक्टर का वेटेज 40% रहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. तो ये क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी प्रीलिम्स में. सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल एंड नेचुरल पेट्रोलियम होगा एक तरह से. सबसे कम फर्टिलाइजर होगा. हाँ, वेटेज भी इनमें भी 8 कोर सेक्टर्स का लीस्ट वेटेज कौन से सेक्टर का? So I think we are done with the Hindu. We can now take up Indian Express in part 2. So just share the link.